Hello everyone, welcome to the lecture number 3 of Unit 11, the P block element. As we know that in our prior lecture number 1 and 2, basically I studied about the general introductions, general idea, general chemical behavior and the difference in the chemical behavior of the first element of each group as compared to the subsequent members of the same group that we have to study already. Now today we start with a group number 13 is called as in the boron family. So we know that in the group of the 13 periodic table consists of the element. This the first one is the boron. We know that this boron is a non-metal and this non-metallic character is due to, we know that it's a small size, high ionization, enthalpy, and comparatively high electronegativity. Right, so boron is the first member which is non-metal in this family, and this non-metallic character of this boron is possibly due to its small size, high ionization enthalpy and comparatively high electronegativity. And other members like, for example, aluminium, then gallium, indium, thallium, right? All are except boron, all other elements of this group shows a typical metallic properties. Okay, fine. Now next in this point we studied about the occurrence of this group 13 family. So first we start with a boron. So boron is occur in two isotopic forms. One is 5b10. This 5b10 is 19% in nature, and 5b11 is near about 81% in nature. Because boron occurs in two isotopic forms, right? This 19% and 81%. So its abundance in the earth crust is very low. Earth crust is very low, near about 0.0001%, which is by mass. Okay, so boron mainly occurs in the orthoboric acid. I think so you heard about the H3BO3. The name of this compound is orthoboric acid. Then number two is borax. Borax means Na2B4O7 into 10H2O. Then third one is a kernite. The formula is Na, same formula, Na2B4O7, but it's a dihydrate, while the previous one borax is decahydrate. And one is a colomenite or colaminite. And this colaminite is the same but calcium, Ca2B6O11 into 5H2O. So it's a calaminite. So boron mainly in the form of borates. Boron mainly found in the form of borates, right? And this borates is chiefly found in California, means USA, and Turkey. In India, boron occurs as a borax, while in India
Is not in the form of borax, but in India it's occur in the form of borax, which is in Puga Valley of Ladakh region, right? In Ladakh region of Kashmir and Sambhar Lake in Rajasthan. Sambhar Lake in Rajasthan. So this is all about the boron. Now what about the aluminium? Aluminium, we know that this aluminium is the third most abundant element. Third most abundant element. And this third most abundant element by weight is near about 8.3% found in earth crust after oxygen and silicon. We know that in earth crust oxygen is 45.5% and silicon is 27.7%. So after this oxygen and silicon, the third most abundant element is aluminium. By weight is 8.3%, which is found in the earth crust. And the important some minerals of aluminium, not ores but minerals. Okay, so first is bauxite. Bauxite means Al2O3 into 2H2O. It's a main ore. Okay. Number 2 is cryolite. I think so you heard about the cryolite because in last lecture I shows that aluminium having a more than tetravalency, so Na3AlF6, and this Na3AlF6 is the main key of the whole Héroult process to get aluminium from alumina. So it's called as sodium aluminium fluoride or Na3AlF6. Number 3 is a muscovite or mica or muscovite. This formula for this muscovite is K2O into 3Al2O3 into 6SiO2 into 2H2O, or sometimes which is written like that, KAl2 Si3Al O10 into OH twice. So it's a aluminosilicate compound. Then another is a ortho. This is the cryolite, bauxite, mica, and one is a feldspar. You heard about the feldspar, or sometimes it's called as an orthoclase. And another name is feldspar, right? So this feldspar having a formula of KAlSi3O8. Then corundum. This corundum means anhydrous alumina, right? Corundum means anhydrous alumina. So there is no water in the case of corundum. And one more is beryl. The name itself suggests that there is a beryllium and aluminium. So it's called as beryl. So beryl is a aluminosilicate compound. So Be3Al2Si6O18 is the formula for beryl. So these are the important minerals of aluminium. Once again, bauxite, but the main ore is bauxite, cryolite, Na3AlF6, mica means muscovite, then orthoclase or feldspar, and corundum and beryl. So in India, we know that there is mica. Mica is found in I think so you heard about the Katni. Katni means Rewa, Madhya Pradesh, which is located at Rewa, Madhya Pradesh. Then Belgaum in Karnataka, Orissa, and Jammu in India. This aluminium or minerals, mica, mainly found in Katni, Rewa, Belgaum, Orissa, and Jammu. In fact, we know that India is the world largest supplier for mica. Okay, world largest supplier for mica. Now, what about the gallium, indium, and thallium? So we know that this gallium, indium, and thallium. So these are the less abundant than aluminium. Less abundant than aluminium. So high concentration, right, of gallium is near about
0.1 to 1%, which is found in the rare mineral which is called as a germanite, which is the complex sulfide, which is, this germanite is a complex sulfide of zinc, copper, germanium and arsenic. So it's a one type of complex sulfide. Okay, so in the form of germanite. Same way, the traces of iridium means traces of indium, are found in the sulfide ore of zinc, while thallium are found in the sulfide ore of lead. Clear? So this is all about the occurrence, but it's not that much important point, but for your knowledge purpose. So how is boron, and boron is in the form of what? Borax, how many minerals that we have to consider about the boron. Then next one is aluminium, then gallium, indium, thallium is, which is definitely they are the less abundant than the aluminium, and the high concentration of gallium in the name of germanite. So it's a one type of complex called sulfide, and some Indian are found in the sulfides ore of zinc, while tellurium are found in the sulfides ore of P. So this is all about the occurrence of group 13 elements. Then after electronic configurations, once again the electronic configuration. In last lecture and last lecture we definitely studied about the electronic configuration of all p block elements, but today we are mainly focused on a group 13 यानी बोरोन फैमिली के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो हमें मालूम है कि इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट जो ग्रुप 13 वाले होते हैं उसकी क्या होती है? ns2 np1 होती है, वेयर n is equal to what? So n is equal to 2 to 6 में आता है, यानी मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर starts from 2 and end with 6. So a closed loop at the electronic configuration suggests that while boron and aluminium have a noble gas core, अभी हम देखेंगे जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हम बात करेंगे तो हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं ना, जैसे मेरे पास बोरोन है तो बोरोन का मैं नंबर मुझे क्या है, मुझे मालूम है 5 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी? 2s2 2p1. फिर दूसरा वाला है मेरे पास एल्यूमिनियम है, सो दे हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगी? 3s2 3p1. ये दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे d अवेलेबल हो सकती है, यहाँ पे d अवेलेबल है ही नहीं. समझ में आ रहा है? फिर दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में जो इनर कोर है वो क्या है? इनर कोर इनर्ट गैस ही है. यानी इसके बाद कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ सकता है. इन द केस ऑफ गैलियम, जो गैलियम है उसका नंबर है 31 गैलियम. तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं वो आप देखिए, इसमें 3D पैक है अंदर और फिर 4s2 4p1 है, यानी इसके इनर कोर में 3D का यहाँ पे जो है वो हाउसफुल है और उसके बाद भी उसकी जो 4D अवेलेबल यहाँ पे हो सकती है, वो देखेंगे हम. फिर 31 के बाद यहाँ पे आता है 49 नंबर है, इंडियन है. सो इंडियम में क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? 4d10 तो यहाँ पे है ही, और फिर होगा यहाँ पे 5s2 5p1. फिर यहाँ पे आता है 81 का नंबर क्या है? टेल्यूरियम. तो उसका जो मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा वो होगा ज़ेनॉन है, और फिर यहाँ पे 4f14 के पास पड़ी हुई है, 5d10 भी है, 6s2 6p1 है, 6s2 6p1.
तो ये मैंने थोड़ी आपको देखें, लेकिन सभी में देखेंगे तो यहाँ पे 2s2 है, यहाँ पे 3s3 है, यहाँ पे 4s4 है, यहाँ पे 5s5 है, यहाँ पे 6s6 है। तो आपको समझना होगा कि यहाँ तो दोनों में इनर्ट कोर मीन्स इनर्ट गैस का ही कोर है, इनर कोर, लेकिन यहाँ पे 3D है, यहाँ पे 4D है, यहाँ पे 5D के आगे 4f भी है। तो इस तरह से आपको थोड़ा उसको विद इनर्ट गैस कोर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि अब a close look at the electronic configurations definitely suggests that in the case of boron and aluminium, यहाँ पे मैंने आपको बोरोन और एल्यूमिनियम के बारे में हमने बात समझाई है। सो बोरोन एंड एल्यूमिनियम हैव नोबल गैस कोर, राइट। इनर कोर उसका, इसका मतलब ये है कि वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स ही मुझे मिलेगा 3, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, राइट, जैसे मैंने आपको बोला था कि गैलियम है और इंडियम है, दे हैव द नोबल गैस। यहाँ पे क्या है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है, और प्लस क्या है, तो प्लस मेरे पास है 10d इलेक्ट्रॉन कोर भी है, इलेक्ट्रॉन कोर्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको समझ में आ रहा है? सो द इलेक्ट्रॉन इसका, और फिर मैं थेलियम के बारे में बात करूं तो क्या होगा, थेलियम में तो क्या है, नोबल गैस तो है ही मेरे पास, नोबल गैस तो है ही, प्लस मेरे पास क्या है यहाँ पे 14f प्लस क्या है 10d इलेक्ट्रॉन की कोर मुझे यहाँ पे मिल रही है। समझ में आ रहा है? सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट ग्रुप 13 जैसे आप देखेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहले दो में सिर्फ नोबल गैस कोर है, दूसरे जो दो आप दिखा रहे हैं उसमें 10d इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वाले में आपने देखा होगा कि d तो है ही, 14f भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। So, electronic configurations of these elements of group 13 are more complex than the group number 1 और 2, जो तो आपको समझ में आ गया होगा सर जी वो एस ब्लॉक वाला तो बहुत अच्छा था, यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, लेकिन पी ब्लॉक का यही तो यूनिक पॉइंट है, यही तो इसकी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि इसलिए तो पी ब्लॉक को काफी अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से पी ब्लॉक में से पूछे जाते हैं। So this difference in the electronic configurations definitely affects the chemistry of all the elements of this group. यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का हमें मालूम है कि सीधा उसका रिलेशंस क्या होगा, जैसे मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या एटॉमिक प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो जो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो उसमें हम शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने कई बार देखा होगा कि आपने कभी बाद में भी आप सुनेंगे कि सभी जो टीचर्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रट्टा ही मारने का है, कुछ ऐसा ही करने का है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरह से देखेंगे ना तो अगर आप, मैंने फिर भी लास्ट लेक्चर में भी बोला था, आप देखिए उसमें जो यूनिकनेस है क्यों है, और क्यों है उसकी वजह से उसकी फिजिकल और प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज दूसरे से डिफर हो रही है। कहीं मैं टीचर्स को देख रहा हूँ वो बोल रहे हैं ये नहीं, ये इसमें एक्सेप्शनल है, नहीं कुछ भी एक्सेप्शनल ही है, उसका जो प्रोसेस डेफिनेटली वो एक्सेप्शनल क्यों है वो हमें देखना पड़ेगा। मैं ऐसे बोलने से कि भाई ये एक्सेप्शनल है आप उसका रट्टा मार लीजिए तो उससे आपका इनऑर्गेनिक अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं काफी स्लोली और आपको जो उसका जो मेन कंटेंट है वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई उसमें एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो यहाँ पे बात की हुई है, तो उसमें से जो मेरे पास पहले वाली जो प्रॉपर्टीज है, मेरे पास फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा हम शुरू कहाँ से करेंगे, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस से ही शुरू करेंगे, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो आपको पता होगा कि जो एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस की यहाँ पे जो बात हो रही है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कोई भी ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे चले जाएंगे तो उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जो हमने एस ब्लॉक में ग्रुप 2 पढ़ा हुआ था, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल से इसका एटॉमिक और आयोनिक रेडियस क्या होगा, कम होगा।
ये तो वो बिल्कुल एकदम सोचने वाली बात है ना। सो द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ये जो मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूं, जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स की जो बात कर रहा हूं, आर स्मॉलर देन द ग्रुप 2 कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप 2। ये तो बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये क्यों है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसका हम किस तरह से देख सकेंगे कि भाई ये क्यों कम होने की वजह क्या है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं सिर्फ बोलता हूं, मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहता हूं कि दिस इज बिकॉज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने अभी आपको पहले भी बोला था, जैसे फ्रॉम ग्रुप 2 टू ग्रुप 13 इन अ गिवन पीरियड, राइट। तो क्या होगा, सभी में आपको मालूम ही होगा कि प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग while the new electron enters in the same cell। और दूसरा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है इन पीरियड। सो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सेल डू नॉट स्क्रीन ईच अदर, क्योंकि एक ही सेल में आने की वजह से वो उसका जो है वो दोनों एक दूसरे के लिए रुकावट नहीं बन रहे हैं। देयरफॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड मोर टुवर्ड टू द न्यूक्लियस। So this result in the decrease in atomic size, same as true of the ionic radius। तो ionic radius और atomic radius के बारे में तो हम ऐसी तरह से ही सोच सकेंगे। जैसे मैंने फिर से मैं आपको यहाँ पे इस तरह एक पॉइंट ये भी है ना कि जो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, वो भी मैंने आपको दिखाया था, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, राइट। अब देखेंगे बोथ, क्या मैं आपको समझा रहा हूं, एटॉमिक एंड आयोनिक जो भी रेडियस है, राइट, दे आर एक्सपेक्टेड, इसका एक्सपेक्टेड क्या है, टू इंक्रीज प्राइमरली। क्यों हो रहा है, ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू इलेक्ट्रॉन shell with each succeeding elements। जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे ग्रुप में, आगे बढ़ते जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है, आयोनिक रेडियस भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो एक नया सेल यानी एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही आगे बढ़ रहा है। तो however there are some, लेकिन फिर भी आप देखेंगे there are some deviations as we move from एल्यूमिनियम टू गैलियम, राइट। मैं यहाँ पे जो अभी जो एक्सेप्शनल पॉइंट चल रहा है वो इसके बारे में हम बात करेंगे। however there are some deviation, right, as we मूव फ्रॉम, जैसे मैं एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जा रहा हूं, राइट। तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, क्यों क्या दिखाई देगा, देखिए जो गैलियम है ना उसका जो है वो 135 पाइकोमीटर है, विच इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या है, 143 पाइकोमीटर है। तो यानी एल्यूमिनियम से गैलियम का तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गैलियम का कम है और एल्यूमिनियम का ज्यादा है। तो इसका रीजन क्या है, मैं आपको ये जो एटॉमिक रेडियस के बारे में बात समझाना चाहता हूं। देखिए जो बोरोन है ना, बोरोन, राइट, मैं आपको फिर से एक बार और बात कर, जैसे बोरोन के बारे में बात की थी, बोरोन है ना उसका 85 पाइकोमीटर है। फिर जो आपके एल्यूमिनियम के बारे में बात की थी मैंने अभी आपको उसको बताया था 143 है। जो गैलियम है ना वो 135 है। फिर जो इंडियम उसका जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है 167 है, और थेलियम का जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 170 है। तो आप देखेंगे इससे तो ये बढ़िया है, बराबर, इससे ये ज्यादा है, बराबर है, लेकिन इससे ये तो जो प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे थोड़ी आप देखेंगे इसका डेविएशंस मुझे मिल रहा है, तो उसके लिए मुझे कुछ समझना पड़ेगा। उसका जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में देखेंगे तो दिस इज ड्यू टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स।
यहाँ पे क्या होगा, इन एल्यूमिनियम वेयर Z इज इक्वल टू 13, इन गैलियम में उसका जो एटॉमिक नंबर है 31. सो देर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में वहां पे पड़े हुए हैं. सो विच हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर डी ऑर्बिटल्स होते हैं. आपको समझ में आ रहा है, एल्यूमिनियम है ना, उसमें डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ की जो इनर आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था गैलियम में 3d10, यानी डी के सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं. सो डी ऑर्बिटल्स आर लार्ज इन साइज. तो लार्ज इन साइज होने की वजह से द इंटरविंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्क्रीन द न्यूक्लियस इफेक्टिवली. तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ गैलियम, जो गैलियम है, विच इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम. तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इन गैलियम एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बाय द न्यूक्लियस देन एल्यूमिनियम. आपको समझ में आ गया मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं. मैं फिर से आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं ये क्यों हो रहा है. तो ये हो रहा है यहां पे जो आप देखेंगे, दिस इज ऑल ड्यू टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स. ये जो उसका जो रीजन है वो है ड्यू टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इन डी ऑर्बिटल्स, इसके लिए यही जिम्मेदार है. अब देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा, राइट. आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स इनर डी ऑर्बिटल्स है. यहाँ पे देखेंगे गैलियम में क्या है, तो गैलियम में इनर डी ऑर्बिटल्स है, राइट. जो डी ऑर्बिटल्स होती है वो ज्यादातर लार्ज इन साइज होती है. लार्ज इन साइज होने की वजह से द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्क्रीन द न्यूक्लियस इफेक्टिवली, राइट. तो वो थोड़ा अपनी तरह से दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. सो इसका जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो डू नॉट स्क्रीन द न्यूक्लियस इफेक्टिवली, यानी वो थोड़ा दूर होने की वजह से उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम का है, राइट, विच इज ग्रेटर मैग्नीट्यूड दैट ऑफ द एल्यूमिनियम. समझ में आ गया. फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं लार्ज इन साइज होने की वजह से दिस intervening electrons do not screen the nucleus effectively. So consequently इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इससे क्या होगा कि जो गैलियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, राइट, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. तो उससे क्या होगा, कंपेयर टू द एल्यूमिनियम क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम एक्सपीरियंस अ ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बाय द न्यूक्लियस देन एल्यूमिनियम. समझ में आ गया. तो वो ज्यादा अपनी तरफ से खींचेगा. तो इससे हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो हमको किस तरह से हम दिखा सकेंगे. तो सेम ट्रेंड आयोनिक रेडियस के लिए भी यही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा. वो भी 53.5 से 62 में चला जाएगा, और बाद में जैसे 27 टू 53.5, 62, वो जो कुछ इस तरह से उसका भी ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है. जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं वो है नंबर 2. और जो नंबर 2 मेरा ट्रेंड है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अभी जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम बात करेंगे. ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम बात करना चाहते हैं, हमें सभी को पता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन जो हमें मिल रहा है वो किसके साथ है, साइज के साथ ही होता है. समझ में आ रहा है. देखिए मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूं द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. देखिए इसमें भी होगा ना, द फर्स्ट आयोनाइजेशन जो मेरे पास एंथैल्पी है, तो वो जिसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा IH1, राइट, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, राइट. तो वो जो ग्रुप 13 है विच इज लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, corresponding elements of
ग्रुप 2, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं, इसका रीजन क्या होगा, तो हमें मालूम है कि मैं रीजन है ना वो आपको समझाना चाहता हूं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, उसमें कितने बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, इसमें से 2 तो एस में चले गए हैं और एक ही पी में है। सो फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द पी ऑर्बिटल इन केस ऑफ ग्रुप 13, लेकिन जो अल्कलाइन था उसमें तो एस में से ही निकला था, वही सेम प्रिंसिपल सेल में से निकला था। तो इसका मतलब एस जो इलेक्ट्रॉन होता है, एस ऑर्बिटल विच इज नियर टू द न्यूक्लियस होती है, यानी मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस होने की वजह से इट इज मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड देन द पी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम प्रिंसिपल सेल। So the removal of p electron is much more easier, right? Much more easier as compared to the s electron. So the first ionization enthalpy of the elements of group 13 are lower as compared to the corresponding values of the alkaline earth metals के बारे में भी हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसमें नीचे चले जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि on moving down the group 13 फ्रॉम, जैसे मैं बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूं, सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जो मैं उसको डेल्टा ए, तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज बिकॉज एज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। तो वो डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होने की 2 वजह है, इसकी एटॉमिक साइज भी बढ़ रही है और जो इसका जो रीजन है वो एटॉमिक साइज से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, और दूसरा उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि एडिशन ऑफ अ न्यू सेल इन एवरी सक्सीडिंग एलिमेंट्स, सो विद आउटवेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। तो हमें मालूम है कि जो गैलियम होता है विच इज ओनली स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम, व्हाइल थेलियम इज मच हायर देन दोज ऑफ द एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। समझ में आ रहा है? मैं नेक्स्ट लेक्चर से फिर से यहां से आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ ही आपके साथ बात करूंगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।